Matram, dear students, today we have to start second part of the chapter multimedia. Multimedia is the eighth part and it is the second part of this chapter. In the first part we have to learn what is multimedia and the components of multimedia. There are five types of components of multimedia. First is the text, second image and picture, third is audio, fourth video, and fifth is animation. Now we have to start uses of multimedia. Here is some of the areas are listed below where we can use different kind of multimedia: environment, education, entertainment, education, virtual reality, presentation. Now we are going to discuss all of these below. हम डिफरेंट काइंड के मल्टीमीडिया देखते हैं, हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे किस लिए यूज़ करते हैं, एक इंटरटेनमेंट के लिए, देन एजुकेशन के लिए, वर्चुअल रियलिटी एंड प्रेजेंटेशन। तो इसका हम नीचे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरटेनमेंट। मल्टीमीडिया पावर इज़ यूज फॉर न्यू वे ऑफ हैविंग फन। द आइडिया इज़ टू यूज computers as medium of entertainment. With the addition of computer games to the multimedia evolution, entertainment has reached new heights. Multimedia is also great for artistic expression. मल्टीमीडिया किस किस लिए यूज़ होता है? इसमें इंटरटेनमेंट मतलब एंजॉय। देन कंप्यूटर के इससे हम इंटरटेन कर सकते हैं ये मल्टीमीडिया के यूज़ से। एडिशनल कंप्यूटर गेम्स हम खेल सकते हैं इस पर। देन इसमें रिवोल्यूशन का पार्ट भी होता है। देन इंटरटेनमेंट के ये इसमें ग्रेट आर्टिस्ट एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ भी इंटरनेट जैसे कार्टून देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ये हमारे इंटरटेनमेंट का पार्ट है। तो ये सब हम मल्टीमीडिया के यूज़ से कर सकते हैं। सेकेंड है एजुकेशन। In education, multimedia applications are used in educational games. Example of coloring game is a good way to help children to learn color by combining entertainment with education. Many other education applications are developed according to the student requirement. एजुकेशन के लिए भी यूज़ होता है मल्टीमीडिया। जैसे कि एक मेन एप्लीकेशन है गेम्स। तो गेम्स कैसे? एग्जाम्पल कलर गेम। अगर कलर गेम से इसमें खेलते हैं बच्चे, तो उससे उनको कलर्स के बारे में पता चलता है, नेम पता चलते हैं कलर्स के। तो इस तरह से वो कलर के बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। और इस तरह से एजुकेशनल और सारे जो प्रोग्राम्स चलते हैं तो वो बच्चे कर सकते हैं। देन थर्ड है वर्चुअल रियलिटी। द गोल ऑफ वर्चुअल रियलिटी इज टू क्रिएट 3-dimensional world which feels real. The high level of interactive is desired and is achieved by simulating world. Virtual reality uses headsets and data gloves. The headset cover the eyes and ear and projects sights and sound generated by the computer. The gloves transmits orientation of hands, enabling the computer to tell where you are looking, reaching, or pointing. This technology will enhance multimedia by supporting real-time interactive 3-dimensional graphics. वर्चुअल रियलिटी मतलब आपको रियल में लगना। जो इसमें रहता है टीवी में या आपके कंप्यूटर में दिखेगा, बट आपको वो रियल में दिख रहा। ये इसके लिए हम गॉगल्स यूज़ करते हैं। अगर इसमें क्या होता है, उससे आपको जो साउंड है आपके 3-dimensional दिखते हैं, कोई भी साइड में दिखते हैं, और जो पिक्चर्स है ऐसे रियल में हो रहे हैं इस तरह से दिखते हैं। तो इसको बोलेंगे वर्चुअल रियलिटी। देन प्रेजेंटेशन। PowerPoint can be very effective for presentation in increasing viewers' enthusiasm and interest in the discussed topic. PowerPoint enable you to use just about any type of media you want. PowerPoint में हम आपका प्रेजेंटेशन देखकर आप उसको टॉपिक डिस्कस करना है, उसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ये है वे है, और आप इससे आपके व्यूअर बढ़ा सकते हैं। और पावरपॉइंट जो है ये एक तरह का मल्टीमीडिया ही है।
Most often you will use only graphic, sound, video and hyperlink, although you can use object from just about any other program, spreadsheet, word processor, etc. इस पे जनरली क्या होता था कि ग्राफिक्स और साउंड और वीडियो इतना ही होता था, और आप जो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर से आप ऑब्जेक्ट यूज़ करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. मल्टीमीडिया कंप्यूटर शुड सपोर्ट द कैप्चर, एडिटिंग एंड विविंग ऑफ वीडियो एंड ऑडियो data and provide facilities for the transfer of this data type between computer either through modem or through local and wide area network. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या है, ये जो मल्टीमीडिया है उसको जो सपोर्ट करते हैं कैप्चर करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए, व्यूइंग वीडियो देखने के लिए एंड ऑडियो सुनने के लिए, तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या फिर ये डेटा वन इसमें से कंप्यूटर से ट्रांसफ़र टू द अदर कंप्यूटर, इसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बोलते हैं. टू डेवलप द सिस्टम ऑफ मल्टीमीडिया वी यूज़ द वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट देखेंगे. सीपीयू. द सीपीयू विच इज़ रिकमेंडेड फॉर अ मल्टीमीडिया कंप्यूटर शुड बी पेंटियम आईवी और अदर एडवांस चिप. जो सीपीयू में क्या होता है मल्टीमीडिया के लिए, प्लेटिनम आईवी और एडवांस चिप होती है सीपीयू के अंदर. परम 8000 is considered India's first supercomputer which was developed in 1991. परम 8000 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, और वो 1991 में डेवलप हुआ है. ये इसके पहले भी आप लोग पढ़े हैं. देन सेकेंड है मॉनिटर. द मल्टीमीडिया पीसी शुड बी इक्विप्ड with monitor having super video graphics array SVGA card. The basic advantage of having SVGA is that if it has a better resolution, the display will be of better quality for the graphics and the picture. मल्टीमीडिया पीसी जो है जैसे कि मॉनिटर जो है वीडियो ग्राफिक्स के लिए अच्छा होता है, और अगर इसमें SVGA कार्ड हो तो इसमें बेटर रिसोल्यूशन या फिर इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा बेस्ट क्वालिटी का डेटा रिजल्ट यहाँ पे दिखते हैं, मतलब आपके ग्राफिक्स से, पिक्चर से या फिर आपके वीडियो से एकदम बेस्ट दिखते हैं. देन थर्ड इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. कीबोर्ड एंड माउस आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर एनी मल्टीमीडिया पीसी. कोई भी मल्टीमीडिया पीसी में कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत होती है, ये मेन कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. CD ROM. Compact disc read only memory. Multimedia uses digitalized audio and video which not only take huge amount of storage space but it also required high speed storage media which can send large amount of data back to keep audio and video playing and recording smoothly. मीडिया, ये डिजिटल मीडिया जो ऑडियो और वीडियो होते हैं इसको सेव करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए रहते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस चाहिए होती है, तो वो पॉसिबल नहीं होती है हमारे पीसी में. इसीलिए उसको किस में रख सकते हैं हम, सीडी और डीवीडी में हम आराम से रख सकते हैं. वी कैन सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बैक टू कीप ऑडियो एंड वीडियो प्लेइंग रिकॉर्डिंग स्मूथली. इसमें हम इजीली रख सकते हैं हमारे जो डेटा है वो. डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क. Digital video disc technology improves the storage capacity to 4.7 to 70 GB. DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 एंड 17 GB की इसकी कैपेसिटी होती है. देन साउंड कार्ड. साउंड आउटपुट फ्रॉम अ computer has been a feature of machines usually used for sending warning, errors, message or games. If better quality and capabilities for sound output or input are required, then there must be a device which can be added to the basic machine. This device is known as sound card, which added to the basic machine. बेस साउंड प्रोवाइड करना ये मशीन का बेस्ट फीचर है, और उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, आउटपुट एंड इनपुट. जो साउंड क्रिएट करते हैं वो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है. देन
देयर मस्ट बी डिवाइस विच कैन बी एडेड टू द बेसिक मशीन। तो ऐसे डिवाइस जो है मशीन में ऐड करते हैं एंड दिस डिवाइस इज नोन एज साउंड कार्ड, उसे साउंड कार्ड कहते हैं। देन फोटो सीडी, it is used to save photos in the compressed form. The compression allows from 100 photos to be recording in one CD। सीडी में हम लोग हमारे फ़ोटो कंप्रेस फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं और इसका कंप्रेशन कहाँ तक होता है, 100 फोटोज तक का। 100 फोटोज टू बी रिकॉर्डेड इन वन सीडी, वन सीडी में 100 फोटो रख सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर फॉर मल्टीमीडिया, वी कैन क्लासीफाई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर as system software and authoring tools used to develop multimedia application. The former set up the communications between the system resources and the application program. मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जिस टूल्स की ऑथरिंग टूल्स की ज़रूरत होती है, यूज़ होते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम सोर्सेस एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम। Some of recent software used to multimedia industry are, एक फोटोशॉप है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिजिटल इमेजिंग सॉफ्टवेयर, देन डायरेक्टर, ऑथरिंग मल्टीमीडिया फॉर CD ROM एंड द वेब, देन प्रीमियर्स, डिजिटल वीडियो एंड फोटो प्रोडक्शन टूल्स, साउंड एडिट, साउंड कैप्चर एंड एडिटिंग फॉर मल्टीमीडिया, फ्लैश वेक्टर कैप्चर एंड एडिटिंग फॉर मल्टीमीडिया, फ्रंट पेज ऑथरिंग tools for internet and the www, and Elias Wavefront, third tool for games and films। तो ये जो सॉफ्टवेयर अगर इसमें इंस्टॉल हुए तो हम इस पर टेक्स्ट मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया में टेक्स्ट है, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ये सब हम इस पर देख सकते हैं मल्टीमीडिया में। यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। फिल अप द सर्कल ऑफ द राइट ऑप्शन विद ब्लैक पेन। Which field is concerned with the computer control integration? Telemedia, multimedia or control media? तो multimedia. Second, how many components are there in the multimedia application? There are 5 components are there in the multimedia application. Third is the which one given below is not multimedia components? Audio, video or graph? Graph is not a multimedia component. How many types of font style defined in text component? There are 2 types of font style device, serif and sans serif. Then in which area 3-dimensional words is created? Virtual reality, जिसमें वर्ल्ड जो है वो 3 डायमेंशनल दिखाई देता है, क्रिएट होता है। how many photos can be stored in a photo CD? 100 photos can be stored in a photo CD. Which chips is required for multimedia CPU? Pentium IV and more advanced version, both. Which hardware is used for more sound compatibility? The CPU, sound card or monitor? The sound card. Which one of the following is multimedia software? Photoshop, Flash, both are the multimedia software. And which one of the following represent the multimedia hardware? Alias, Flash or CD-ROM? CD-ROM is the multimedia hardware. Fill in the blanks. यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें फिल करना है। Multimedia is an application which represent collection of multiple media resources. Devices required for multimedia applications are known as multimedia hardware. Multimedia supports the graphical user interface, GUI. There are 5 main components held in multimedia field. The motion and sound captured by the camera or other peripheral devices, naturally known as video. And the last is the goal of virtual reality is to create a 3-dimensional world which feels real. Virtual reality. Then true or false? Hypermedia can be considered as one of the multimedia application. False. Photoshop is industry standard digital imaging software. True. Compact disk technology improves the storage capacity to 4.7 GB. False.
पावर डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। पावर रियलिटी यूजेस हेडसेट्स एंड डेटा ग्लव्स, फॉल्स। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एनालाइज इज द फुल फॉर्म ऑफ SVGA, ये भी फॉल्स है। एंड द बिगेस्ट रिवोल्यूशंस ऑफ इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस कम्स इन entertainment area, that is true. For this, match the following: CD-ROM, the multimedia hardware; Alias, one of the multimedia software; Photoshop, digital imaging software; then education, one of the area of multimedia uses; virtual reality, the area where 3D effects occur; and input device, keyboard and mouse. तो इस तरह से आपको मैचिंग कंप्लीट करनी है। एंड ब्रेन ट्विस्टर जो आपके लिए है, आइडेंटिफाई द इमेज, आपको ये इमेजेस आइडेंटिफाई करनी है 1 2 3 4 5, उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं और नीचे राइट डाउन द यूजेस ऑफ गिवन डिवाइसेस। आपको CPU, CD एंड साउंड कार्ड, इसका यूज़ आपको लिखना है। CPU का यूज़, CD का यूज़, साउंड कार्ड का यूज़ आपको लिखना है। तो ये यहाँ पे हमारे चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।